Hello everyone. Here we are talking about our first year teaching subject, that is teaching of English. Our today's topic is about importance of instructional material, which we known as audio visual aids या फिर teaching aids. In previous lecture we already done about the meaning and definition of instructional material and the classification of instructional material. Today we will discuss about the importance that by teaching aids है जो या फिर audio visual aids है, why these are important in teaching learning process. जो audio visual aids होती हैं, जो instructional material होती हैं, instructional material play phenomenal role in effective teaching learning process, because with the help of instructional material student can understand each and every concept accurately, या फिर हम कह लिए उसको डीपली जो नॉलेज होती है स्टूडेंट्स को वो मिल जाती है, वो हर एक चीज जो एक अच्छे से समझ पाते हैं. द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कैन फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ all the things related to teaching a foreign language like English, because English is new language for Indian students because it's not a mother tongue of the students. So English अगर हम बात करें with the direct method they can't understand properly, they can't understand deeply knowledge. सो इस फॉरेन लैंग्वेज को टीच करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स की जो हेल्प है वो लेनी पड़ती है, ताकि हम बच्चों को इस लैंग्वेज के बारे में अच्छे से समझा सके. टू अवॉइड द डलनेस क्रिएटेड इन क्लासरूम व्हाइल टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी वेरी इफेक्टिव. बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव रोल प्ले करता है. सो वी कैन से दैट आउट ऑफ 5 सेंसेस it is through hear and sight that 86% knowledge is gained. हमारी वैसे 5 सेंसेस की जब बात की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ईयर्स होते हैं, जो हमारी आईज होती हैं, देखकर और सुनकर हमारी जो 86% नॉलेज है वो बच्चे गेन करते हैं, वो प्राप्त करते हैं सिर्फ और सिर्फ देखकर और सुनकर. The audio visual aids therefore have a great importance both for the teacher and the learner, because teacher can teach effectively with the help of instructional material and a user या फिर learner can understand each and everything easily with the help of audio visual aids. In the context Rousseau says, give your scholar no verbal lesson, he should be taught by experience only. कि उसको एक एक्सपीरियंस से पढ़ाया जाए rather than कि जो हमारा लेक्चर मेथड होता है. तो अब इसकी हम कुछ पॉइंट्स करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के, कि किस प्रकार से ये हमें हेल्प करती है हमारी बच्चों को समझाने में और टीचर जो समझा रहा है उस चीज में. सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट, हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट. In creating interest, because with the help of instructional material student can direct experiences with the things, with the help of models, with the help of charts. The use of different aids by the teacher while teaching makes learning process more interesting. जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसको जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है. समटाइम्स द टीचर मेक्स द यूज ऑफ चार्ट, फिल्म्स, मॉडल्स, स्ट्रिप्स and sometimes he just perform and experiments in the class. All this make the teaching learning process more interesting, because with the help of audio visual aids student can understand easily. If student can understand each and every subject matter, then they can
एक्टिव इन द क्लास, वो एक्टिव हो सकते हैं क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं। तो ये सबसे इनका जो मेन हम कह सकते हैं कि काम है, जो मेन इसका रोल रहता है ऑडियो विजुअल एड्स का, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मेकिंग क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। हेल्पफुल इन मेकिंग क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की क्लियरिटी कैसे बता करती है? कई चीजें होती हैं हम ऑरली नहीं समझा सकते, हम वर्बली उस चीज को नहीं समझा सकते। देन द टीचर ऑलवेज यूज सम एग्जाम्पल, सम चार्ट, सम मॉडल्स, कोई भी आप लगा लो कि ऑडियो विजुअल एड्स है उसका यूज किया जाता है, तो उसकी सहायता से जो कंसेप्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्लियर किया जा सकता है। द टीचिंग एड्स मेक द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कॉन्क्रीट एंड थर्ड help in making learning more effective. They give clarity to the subject matter because topic is explained or present in a systematic order in which help better understanding. तो क्या हेल्प करती हैं ये? बच्चों को जो सब्जेक्ट मैटर की क्लियरिटी है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को साइंस का जो कुछ सब्जेक्ट मैटर है, कोई टॉपिक है साइंस से रिलेटेड, हम उसको वो समझा रहे हैं, उसको लेक्चर मेथड से उतना समझ में नहीं आता जितना कि उन चीज को एक्सपीरियंस करवा दिया जाता है। प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस करवा दिया जाता है तो एक बेटर तरीके से वो समझ सकते हैं। उसको आप चार्ट की हेल्प से करवा सकते हो, आप उसका प्रैक्टिकल उनका एक्सपीरियंस करवा कर दिखा सकते हो। तो इससे क्या होता है, सब्जेक्ट की जो क्लियरिटी है वो ज्यादा आती है। हेल्पफुल इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, helpful in direct experience. डायरेक्ट एक्सपीरियंस मीन्स आप कोई कंसेप्ट करवा रहे हो, आप किसी थिंग के बारे में बता रहे हो, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो आप समटाइम्स आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके दिखाते हो। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर टेल्स द स्टूडेंट अबाउट द ताजमहल। At that time it is not possible to go Agra to clear the concept, to clear about the Taj Mahal, but he or she can teach this concept, this topic with the help of a model. He can use the model of Taj Mahal, वो ताजमहल का जो मॉडल है दिखा सकता है। सेम इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, बर्ड्स, some other things, then he or she can use model of animals, model of fruits, model of birds, model of vegetable। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाता है बच्चों को। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर डायरेक्ट एक्सपीरियंस फॉर द लर्निंग, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपीरियंस की हेल्प से वो हर एक चीज को एट ए टाइम समझ जाते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। It is always not possible to take the children out for the direct experiences. उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाने के लिए कुछ मॉडल या चार्ट की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेल्पफुल इन फिक्सिंग द नॉलेज। फोर्थ पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन फिक्सिंग द नॉलेज। फिक्सिंग द नॉलेज मीन्स नॉलेज को, आपने जो चीज पढ़ी है, आपने जो चीज सुनी है, उसको फिक्स करने के लिए, उसको जो है ज्यादा समय के लिए याद रखने के लिए जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। द ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन मेकिंग knowledge permanent and stable. Professor P.J. Rowland has proved that through experiments that
With the help of audio visual aids, a person attains 30% more knowledge rather than a traditional method या rather than a lecture method। अगर सिर्फ और सिर्फ हम वर्बली उनको बताएंगे, उनको जो कम नॉलेज आएगी जो थिंग्स की, अगर हम साथ ही साथ उनको एक्सपीरियंसेस देंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाएंगे, चार्ट या मॉडल की हेल्प करेंगे, तो वो 38% ज़्यादा उस चीज़ को समझ सकता है। बिकॉज द टॉपिक विच द स्टेटमेंट लर्न थ्रू चार्ट्स पिक्चर रिमेन स्टिल इन द माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एक जो लॉन्ग टाइम तक वो रह सकती है। सो हम कह सकते हैं कि ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं वो नॉलेज को फिक्स करने में भी हमारी हेल्प करती हैं ज़्यादा समय के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेस्ड ऑन टीचिंग मैक्सिम्स। बेस्ड ऑन टीचिंग मैक्सिम्स, ये जो टीचिंग के मैक्सिम्स होते हैं उन पे आधारित होते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चलते हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक चलते हैं। बिकॉज इसमें जो बच्चों को एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाया जाता है, बच्चों को एग्जाम्पल के जरिए जो है उसको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, जो कंसेप्ट उनको इजी नहीं लगता, उनको मुश्किल लगता है, तो ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से वो कंसेप्ट उनके लिए इजी हो जाता है। ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू टीचिंग मैक्सिम्स लाइक फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, जर्नल टू स्पेसिफिक, नॉन टू अननोन। Whenever the teacher makes the use of audio visual aids, actually he is making use of any maxim such as from non to unknown or concrete to abstract. In this case he starts with the knowledge which the student already have and then gives them to knowledge about which they remains ignorant। पहले उसी से स्टार्ट की जाती है कि जो थोड़ी बहुत ही नॉलेज स्टूडेंट को ऑलरेडी होती है कंसेप्ट के बारे में, फिर उन मॉडल चार्ट की हेल्प से जो आगे उनको नॉलेज देनी होती है वो बच्चों को दी जाती है। आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ मैक्सिमम सेंस। यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस। मैक्सिमम सेंसेस का क्या बात है, जब हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हैं, व्हेन वी यूज ऑन लेक्चर मेथड, देन कौन सी जो सेंस काम करती है, उसकी हियर सेंस काम करती है, वो सिर्फ और सुनते हैं अपने विद द हेल्प ऑफ ईयर्स। बट इन ऑडियो विजुअल एड्स सेंस की अगर बात करें, मैक्सिमम सेंस उनकी काम करती है। अगर आप उससे ओवरहेड प्रोजेक्टर से समझा रहे हो, टेलीविजन के जरिए, किसी फिल्म के जरिए समझा रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या देख भी रहे हैं, साथ ही साथ सुन भी रहे हैं। अगर आप किसी मॉडल के जरिए बच्चों को समझा रहे हैं तो दे कैन हियर एज वेल एज दे कैन वॉच एज वेल एज दे कैन टच द ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें ये क्या है कि मैक्सिमम जो सेंसेस यहाँ पे काम करती हैं रादर देन अ सिंगल सेंस। Audiovisual aids involve maximum use of senses. The students have to see and hear and touch the things which taught in the class and sometimes they have to do themselves. उन्हें practical भी करवाया जा सकता है sometimes. आगे हम बात करते हैं helpful in making student active. Helpful in making students active, स्टूडेंट को एक्टिव रहने के लिए हेल्प करती है। बिकॉज इसमें क्या है, ये स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट करती है क्लास में, देन वो क्या करते हैं, फिर अपने आप जो एक्टिव हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनिस्ट, there should be active involvement of student in teaching learning process. The greater in active involvement of students, the better will be the learning. The use of textbook reading or explaining by the teacher makes students passive learners, but the use of audio visual aids can change this passive listening into
एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवाया जाता है, उसको जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो उसमें जो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं। आगे हम बात करते हैं हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेरियस स्किल्स। helpful in developing various skills. What do you mean by various skills here? Various skill का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट सिर्फ जब लेक्चर सुनता है तो मतलब उसका क्या होता है, सिर्फ सुनने का काम होता है, उसकी जो लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब उसको प्रैक्टिकली करवाया जाता है तो उसकी लिसनिंग स्किल तो इम्प्रूव होती ही होती है, क्योंकि वो सुनता भी है, साथ ही साथ वो चीजों को देखता भी है, साथ ही साथ वो टच भी कर सकता है इस चीज को। तो वो क्या कर सकता है, उसकी जो स्किल्स हैं, हाउ टू ड्रा ए डायग्राम, एक डायग्राम कैसे बना सकते हैं, हाउ टू यूज द प्रेट्स, अगर वो प्रैक्टिकल कर रहा है तो वो कैसे जो प्रेट्स हैं वहां पे उसको यूज किया जा सकता है, एंड हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। उसकी लिसनिंग भी इम्प्रूव होती है, उसकी जो डायग्राम बनानी है उसको उस चीज का पता चल जाता है कि कैसे वो किसी चीज को, किसी क्वेश्चन के आंसर को इफेक्टिव रूप से दे सकता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसको कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्पफुल इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी। हेल्पफुल इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी। टाइम एंड एनर्जी का कैसे बताते हैं, लेक्चर मेथड से क्या होता है, उनको जल्दी समझ में नहीं आता, उनको किसी भी चीज को समझने के लिए बार बार जो एफर्ट करने पड़ते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दे कैन अंडरस्टैंड टॉपिक, दे कैन अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर इजीली। तो इसमें दोनों का फायदा होता है, दोनों टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत टीचर एंड जो स्टूडेंट्स में उनका टाइम सेव होता है और एनर्जी सेव होती है। ऑडियो विजुअल एड सेव द टाइम एंड एनर्जी इन सेंस दैट द स्टूडेंट लर्न मोर क्विकली विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, मॉडल्स, फ्लैश कार्ड एक्स्ट्रा देन बाय द सिंपली लेक्चरिंग। जो सिंपल लेक्चर होते हैं उसकी बजाय वो जल्दी समझ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं हेल्पफुल इन सेल्फ एक्सप्रेशन। हेल्पफुल इन सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन का मीनिंग कि ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं वो सेल्फ एक्सप्रेशन में भी हेल्प करती हैं। मैन हैज बीन एक्सप्रेसिंग हिज आइडिया थ्रू पिक्चर्स, ड्राइंग एंड दे हैव बीन गिवन बर्थ टू वेरियस स्क्रिप्ट्स। जो इंसान अपनी ड्राइंग की सहायता से भी क्या अपने वेरियस जो आइडियाज है, अपने व्यूज है, वो दूसरों को बता सकता है। समटाइम्स कुछ जो लोग हैं वो अपने व्यूज वर्बली नहीं बता सकते, तो दे कैन ड्रॉ देयर आइडियाज, तो वो अपने आइडियाज ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पार्टिकुलर पर्सन भी है जो वो ड्रॉ कर सकता है ऑडियो विजुअल जो एड्स है उसकी हेल्प के साथ वो चीजें ड्राइंग करके। Linguistic have recognized various drawing that the other people could understand. For example, there are a bridge ahead. There is danger ahead. Extra was expressed through drawing. When we ever go on the road, जब भी हम रोड पे जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ वहाँ पे जो साइन बोर्ड होते हैं वो लिखे होते हैं, वो एक ड्राइंग की गई होती है। देन की जो ब्रिज अहेड या फिर डेंजर एरिया अहेड या फिर कर्व है, यू टर्न है, राइट टर्न है, या आगे की वो हॉस्पिटल है या पेट्रोल पंप है, तो उसके जो थोड़े ड्राइंग की होती है। विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग विद बाय द ड्राइंग, की जो ड्राइंग है वो क्या कहा जा रहा है उसके द्वारा, वो some other things as trees, village, extra been expressed by the drawing.
तो ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्रेस्ड बाय द ड्राइंग ऑन द रोड। तो जो पर्सन है वो भी अपनी फीलिंग ड्राइंग के जरिए अपनी जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। समटाइम वो जो आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रैफिक को लेकर या किसी अन्य चीजों को लेकर, वो भी वहां पे जो ड्राइंग के द्वारा एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हेल्पफुल इन चेंजिंग ट्रेडिशनल टीचिंग। हेल्पफुल इन चेंजिंग ट्रेडिशनल टीचिंग। So traditional teaching that means teaching with the help of a lecture method, उस चीज को भी ये चेंज करती है। अगर हम इस चीज को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो क्या इफेक्टिव हो जाती है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स चेंजेस द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, स्टूडेंट फील मोर एनर्जिक एंड अवेयर ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग ड्यू टू द use of effective teaching aids. The lesson becomes dynamic and student become more active in the classroom. तो इसलिए ये क्या करती है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसको चेंज करके जो हमारी लेटेस्ट टीचिंग है उसको एक इफेक्टिव जो रूप है वो प्रदान कर देती है। आगे हम बात करते हैं हेल्पफुल इन सुपरविजन। हेल्पफुल इन सुपरविजन का क्या मतलब है? रेगुलर यूज ऑफ एड्स हेल्प्स इन डेवलपिंग एनालिटिक एंड कंपैरेटिव एबिलिटी ऑफ द पीपल। The pupils learn to evaluate from about the teachers and their competence in the use of these aids during teaching learning process in the classroom। वो हर एक चीज को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और वो क्या करते हैं, उनमें जो कंपैरिजन करने की कैपेबिलिटी वो आ जाती है। हर एक चीज को वो कंपेयर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और चीजों को जो एक उनका एटीट्यूड है, एनालिटिकल एटीट्यूड है, वो बच्चों में आ जाता है। वो एक सुपरविजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स ब्रिंग रियलिटी इन द क्लासरूम। ऑडियो विजुअल aids bring reality in क्लासरूम। मतलब वो एक रियलिटी लेके आते हैं क्लासरूम में, एक जो रियल सिचुएशन है टू टीच अ फॉरेन लैंग्वेज, टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसके लिए एक जो सिचुएशन तैयार करनी है, जो एनवायरनमेंट आर्टिफिशियल तैयार करना होता है, ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से हम उस चीज को कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स ब्रिंग रियलिटी इन द क्लासरूम बिकॉज वर्बल एक्सप्रेशन आर जनरली वर्ब। Sometimes a teacher explain a lot of abstract things which the children cannot understand in the lecture method. The use of audio visual aids bring reality in the classroom because they can direct experience with the help of models, with the help of charts या फिर अदर प्रैक्टिकल वर्क। तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी उन्हें जो जल्दी से समझ आ जाता है। दैट्स वाई जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो हम कह सकते हैं कि एक जो रियलिटी है क्लास में, एक रियल सिचुएशन है उसको पैदा करती है। आगे हम बात करते हैं एक्ट एज अ गुड मोटिवेटिंग फोर्स। एक्ट एज अ गुड मोटिवेटिंग फोर्स। गुड मोटिवेटिंग फोर्स, हम जितना अपने आप को मोटिवेट करेंगे, जितना हम दूसरों को मोटिवेट करेंगे, उतनी ही जो चीजें हैं वो जल्दी समझ में आती हैं, उतनी ही वो अच्छी समझ में आती हैं। ऑडियो विजुअल एड्स नॉट ओनली मेक द स्टूडेंट एक्टिव बट मोटिवेट्स देम टू इंडल्ज इन द creative activity by arousing their imaginative powers. If they are
encourage to make such things they would certainly do it with pleasure. अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे, अगर हम उसको सिर्फ एक्टिव होने की बजाय उसको एक क्रिएटिविटी करने के लिए कहेंगे, जिस भी चीज के बारे में पूछा गया उसके बारे में व्यूज देने के लिए कहेंगे, उसकी जो इमेजिनेशन पावर है उसको राउज करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, देन डेफिनेटली वो क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे और वो जो अपनी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन है वो करेंगे। अगर हम बच्चों को इन चीजों के लिए इनकरेज करते हैं, दे वुड सर्टेनली डू इट विद द प्लेजर, वो अपनी एक प्लेजर के साथ, उनको भी एक खुशी होती है फिर जो क्रिएटिविटी दिखाने की, क्लास में जो एक्टिव होने की। दिस विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैस्प द सब्जेक्ट मैटर बिसाइड डेवलपिंग देयर क्रिएटिव इंटरेस्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया है, एक कंप्लीट हो गया कि डेफिनेशन अबाउट द instructional material, classification of the instructional material and importance of instructional material. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की हमने एग्जांपल की बात की थी, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, OHP या फिर चार्ट्स, मॉडल, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या चीजें होती हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।